ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ, जितनी ताकत हाथों में है, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने जन खुश हैं आज परमेश्वर की प्रेजेंस में? आज स्पेशल मीटिंग है और हमारा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में वंडर करेगा। बड़े और अद्भुत काम आज आपकी जिंदगी के अंदर होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन तैयार है परमेश्वर के कामों को देखने के लिए? तो आज आप आए नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको यहां पे लेके आया है ताकि आज आप परमेश्वर के मसा को, उसके अभिषेक को अपने साथ कैरी करके लेके वापस जाएं और आपकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, ब्रांचेस में भी, और जितने यहां पे लोग मौजूद है सब बैठ जाओ। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे कि परमेश्वर कैसे बड़े और अद्भुत काम अपने लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है कि परमेश्वर अच्छा ये भी काम कर सकता है, परमेश्वर मुझे हील कर सकता है। तो आज बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारा बिलीव है जब आप सुनेंगे परमेश्वर के वर्ड को और गवाहियों को तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोई जात धर्म चेंज करने के लिए नहीं, वो हमारे जीवन को चेंज करने के लिए आए। हालेलुया। तो एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज, गवाहियों को हम सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੰਦਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ 31 ਮਾਰਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹਾਰਡ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੇਅਰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਗੱਬਿਓਂ ਦੋ ਫਟ ਗਈ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਲੱਕ ਠੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਔਰਥੋ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਪਲੈਸ਼ ਇੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ MRI ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ MRI ਕਰਾਈ। ਮੇਰੀ 25 ਮਿੰਟ MRI ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ MRI ਕਰਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈਫ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੰਡੀ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਰਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜ਼ੂ 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 ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਪਸ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੀਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ गर्दन नहीं घुमानी, जे तू घुमाएगा तेनों और ज्यादा चक्कर आने। मतलब इस चीज का असर आपकी मेमोरी के ऊपर पड़ना शुरू हो चुका था? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने याद ही नहीं रहता था कुछ भी समय। बिल्कुल याद नहीं सी रहता जी। और फिर डॉक्टर ने क्या बताया कि इसका हल क्या है, ठीक कैसे करेंगे इसको? उन्हें कहा भाई दवाई खाने पैनी आ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਵੀਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੇਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਦਬਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਔਰ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਪੂਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਸਡ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਟੁੱਟਵੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ दासी द्वारा सर पे ले हैंड किया और ब्लेस किया ब्रदर। उस ले हैंड प्रेयर को एक बार हम फिर से फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी डॉक्टर्स ने बता दिया ये प्रॉब्लम है, दवाइयां खा के देख ली, सिर्फ एक स्पर्श सामर्थी हाथ जैसे ही सिर के ऊपर आया वो रोग वो बीमारी खत्म हो चुकी थी। और आपने बताया कि इसी प्रॉब्लम के कारण आपकी फ्लाइट भी कैंसिल हो चुकी थी। हाँ जी हाँ जी ब्रदर, इसे प्रॉब्लम दोबारा मतलब ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਟ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਨੀ ਜੋ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੱਕ ਲੁੱਕ ਤੇ पर वो इंजरी बहुत भयानक थी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾੜਾਂ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਬ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ, ਐਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ और ਹੁਣ मैं बिल्कुल आजाद हाँ, बिल्कुल ब्लेस्ड हाँ, बिल्कुल हील हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? ब्रदर पूरा महीना हो गया, दिन पर दिन ब्लेसिंग है भाजी। चेक किया आपने? बिल्कुल चेक किया। दवाइयां बंद हो चुकी हैं? बिल्कुल बंद है दवाइयां। और अभी वापस कनाडा जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं ट्यूसडे को वापस कनाडा जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब जन। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, चाहे बीमारी बड़ी बता दी है, लेकिन भरोसा विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। और आप भी अपने जीवन की आज बिगेस्ट टेस्टिमनी को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर तैयार हैं तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, और जोर से तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सिस्टर शिल्पा है और मैं लुधियाना से हूँ। मैं अपनी टेस्टमनी देने आई हूँ प्रेगनेंसी की। और मेरी प्रेगनेंसी की टेस्टमनी है 2022 में मेरी मैरिज हुई थी और उसके बाद मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। 1.5 साल हो गया था मैरिज को, पर कोई भी हमें एक बार भी बेबी कंसीव नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे मदर इन लॉ ने और मेरे मदर ने फोर्स किया कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा। फिर हमारे टेस्ट हुए। उसके बाद जब हमारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने टेस्ट करवाए दोनों के, तो टेस्ट ठीक थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि शायद आपका यूट्रस कमज़ोर है, तो इसलिए आपको मेडिसिन दे देते हैं खाने के लिए। लेकिन मैं प्रभु पे विश्वास करती थी और मैं इस मिनिस्ट्री के साथ 2015 से जुड़ी हुई हूँ और मैं ऑनलाइन भी पापा के साथ जुड़ी हुई हूँ मिनिस्ट्री के साथ। तो मैं ऑनलाइन भी प्रेयर अटेंड करती थी, यहाँ चर्च भी हम कभी कभी आते हैं। और उसके बाद मैंने प्रेयर अटेंड की और मैं मेडिसिन भी ले आई थी काफ़ी सारी, लेकिन वो मेडिसिन मैंने खाई नहीं थी क्योंकि मुझे आपको जब 1.5 साल के बाद जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो आपको 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में अजीब सी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हुई थी। हाँ जी, मुझे ना ब्लीडिंग हो गई थी। तो उसके बाद मैं बहुत डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो जब मैं डर गई तो हम हॉस्पिटल में गए। तो उसके बाद मैं रोने लग पड़ी। मैंने बोला प्रभु ये क्या हो गया, मुझे आगे 1.5 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई है। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला स्कैन होगी फिर पता चलेगा। मैंने सोचा मिसकैरेज हो गया है। तो उसके बाद लेकिन मुझे प्रभु पे भरोसा भी था और परमेश्वर का धन्यवाद कि जब स्कैन हुई तो बेबी, डॉक्टर ने बोला बेबी बिल्कुल ठीक है, हार्ट बीट उसकी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आप डरो मत। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। उसके बाद फिर मुझे 7 मंथ में फिर स्पोर्टिंग होगी।
तो फिर हम डॉक्टर के पास गए और उसके बाद फिर मैंने खामड़ा चर्च में टीम से भी मैंने फ़ोन आप किया। खुद भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं? हाँ जी, पहले करती थी शादी से पहले। क्या जॉब थी आपकी वहाँ पे? मैं नर्स हूँ, मैंने जीएनएम नर्सिंग की है। ओके। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसके बाद मैंने परेशान मैं होगी, फिर मैंने ले हैंड के क्योंकि लिए बार सोचा। बार प्रेगनेंसी के दौरान बार बार ब्लीडिंग होना, स्पॉटिंग होना, तो आपको लगता था कि शायद मिसकैरेज ना हो जाए, हाँ जी हाँ जी, यही। क्योंकि ऐसा होना सही नहीं होता। जी, तो बिल्कुल। आप पहले से अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ये बड़ा काम किया? उसके बाद मैंने ले हैंड के लिए मतलब फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन। तो 29 सितंबर को मेरा तब 8th मंथ चल रहा था, स्टार्ट हुआ था। तो मुझे ना उससे पहले मतलब ले हैंड से पहले ना सपने में 2 बार दुष्ट आत्मा ने अटैक किया बेबी के ऊपर। तो मैंने सपने में देखा कि एक लेडी थी, वो मेरे पेट पे चढ़ गई और उसने मेरे बेबी को दबा दिया एकदम से सपने में। और मुझे 2-3 बार गलत ड्रीम भी आए, मतलब स्नेक के ड्रीम भी आए दुष्ट आत्मा के, जो मेरे बेबी को ऐसे हार्म करने की कोशिश कर रही थी। दुष्ट आत्मा लेडी थी। तो मैंने फिर पापा जी से ले हैंड करवाया, मैंने फॉर्म फिल किया। तो 29 सितंबर को पापा जी ने ले हैंड किया था मेरे जूम पर और उन्होंने मेरा नाम बोला था उस स्पेशली। ले हैंड प्रेयर को भी हम एक बार देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। जैमसे की पापा जी। आपका नाम क्या है? शिल्पा पापा जी। शिल्पा है ना? वही। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या लिखा है? CIP क्या होता है? पापा जी प्रेगनेंसी है 8 मंथ चल रहा है और बार बार ब्लीडिंग हो जाती है और ड्रीम्स में अटैक करता है अभी। ओके, तुम टेस्टमनी के साथ वापस आओगी, कोई अटैक नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। अपने पेट पे हाथ रखो। आमीन। मुझे छू भागरू, मुझे छू आमीन। मुझे छू। आमीन। शिल्पा, यीशु के नाम में कोई अटैक नहीं, कोई अटैक नहीं। तुम गवाही के साथ वापस आओगी बहुत जल्द, इन जीसस ने। तो आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से और परमेश्वर के दास ने स्पेशल वर्ड दिए कि शिल्पा तुम टेस्टमनी के साथ वापस आओगी, ऐसे वर्ड जब आपने सुने कि कोई अटैक नहीं होगा, कितना फेथ मन में बन चुका था आपके उस समय? बहुत ज़्यादा फेथ था और हुआ। और उसके बाद मुझे मतलब अनॉइंटिंग भी बहुत फील हुई थी। तो जब पापा जी ने ले हैंड किया तो पहले हैंड किया पापा जी ने, तो बहुत ज़्यादा अनॉइंटिंग फील हो रही थी और मैंने रिसीव किया विश्वास के साथ। मेरा फेथ और बढ़ गया। मुझे विश्वास था कि जब पापा जी पवित्र आत्मा से होकर दुआ करेंगे, ले हैंड करेंगे, तो उसके बाद मेरा अटैक ख़त्म हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास था। तो उसके बाद मुझे कभी कोई अटैक नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ और कोई दुष्ट आत्मा का सपना भी नहीं आया। और उसके बाद 20 नवंबर को प्रभु ने मुझे, मैं टेस्टमनी के साथ आई और प्रभु ने मुझे बेबी बॉय के साथ, हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर Thank के you, Jesus। दास के मुख से निकला एक वर्ड, अगर आप उसको रिसीव कर लें सुन के और फेथ कर लेंगे, अगर उन्होंने बोल दिया तो बस शैतान जा चुका है, वो दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, बीमारियां जा चुकी हैं। कितनी बार इस बहन को कॉम्प्लिकेशंस हुई, बार बार प्रेगनेंसी में ऐसा होना, लेकिन वर्ड क्या दिया कि तुम टेस्टमनी के साथ आओगी। और आज ये बहन अपनी टेस्टमनी को साथ में लेके परमेश्वर के घर में आए हैं। आप भी अपनी गवाही के साथ वापिस आ रहे कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में सब हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर सोमा जो कि कपूरथला से हैं। इस बहन की गवाही है कि 1.5 साल पहले ये अपनी एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और तेज़ रफ्तार से आ रही एक कार इनके साथ टकराई। इनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़ोर से जो गिरे और जब ये उठने की कोशिश कर रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। आसपास के लोगों ने इनकी हालत को देखा और इनको हॉस्पिटल लेकर गए। तो आज ये बहन नडाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਮਾ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ, ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना है, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने रॉड डाल दी, प्लेट डाल दी गई और डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, पर वो जख्म बढ़ता जा रहा था। कोई इनको आराम नहीं था, टोटली बेड पर थे। हस्बैंड देख रहे थे, बेटी घर का काम करती थी, बहुत परेशान थे, नेगेटिव हो चुके थे कि शायद अब मैं नहीं चल पाऊंगी, जख्म बढ़ चुका था। फिर से दूसरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने प्लेट चेंज की, पर हालत सेम वैसी ही थी। खुदा के साथ पहले से जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु पे था कि अगर अब इस हालत से मुझे कोई निकाल सकता है, जहां मुझे चंगा कर सकता है, तो वो परमेश्वर है। विश्वास में बने रहे, पहले से खुदा की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा चर्च में। 17 नवंबर 2024 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई और उस लेहन प्रार्थना के बाद से ये बहन पूरी तरह हील है। वो जख्म सूख चुके हैं, टूटी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, खुदा ने हील किया है। आप उस लेहन को पूरी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये पहले एक बार ऑनलाइन जूम परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है। अपने शरीर पर अपना हाथ रख लें। अगर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप उसके शरीर पर हाथ रखें और आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ यीशु मुझ पे दया कर, यही बोलना है। जीसस हैव मर्सी ऑन मी। यीशु मुझ पे दया कर। मैं आप पर हीलिंग को देख रहा हूं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और आज भी जितने जन ऐसे हैं जिनकी हालत खराब है, कंडीशन खराब, हॉस्पिटल्स में है, अगर आपका विश्वास फेथ बड़ा है तो अगले आप होंगे जो खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे, क्योंकि विश्वास बड़ा है तो हीलिंग चंगाई सामर्थ आपको छूता है, आपको खुदा हील करता है, खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले सब जन, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे चर्च। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सबको जैमसी की। मेरा नाम किरणदीप कौर है। मैं अजनाला ब्रांच से, अजनाला अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने जीवन की बहुत बढ़िया गवाही देने वाली हूँ कि परमेश्वर ने मुझे व्यभिचार से कैसे छुटकारा दिया। परमेश्वर ने मुझे व्यभिचार से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने मुझे सब गलत संगीत से छुटकारा दिया। 2 साल से आपकी लाइफ जो टोटली पाप में जा चुकी थी जी, और इसी कारण ना तो स्टडी पर फोकस कर पाते थे, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते थे। जी ब्रदर। तो इन चीजों से आप बहुत कोशिश करते थे कि मैं निकल जाऊं, जी ब्रदर। पर निकल नहीं पा रहे थे। क्या क्या मन में क्या आता था उस समय फिर? मन में बहुत, जैसे मैं सोशल मीडिया में जो भी कुछ देखती थी तो वह मेरे मन में ऐसे लगता कि वो मैं करूं, जो मैं देखती हूँ वो मैं करते जाऊं। लेकिन मैं ये भी सोचती थी कि मैं ये सब नहीं करना, मैं छोड़ना है। प्रभु की निगाह में यह सब कुछ अच्छा नहीं है। और आपके मन में हमेशा एक डर, एक बेचैनी रहती थी उस पाप की वजह से। जी ब्रदर। और आप जानते कि जैसा परमेश्वर के दास ने बोला कि जो व्यक्ति पाप में है वो हमेशा उसके अंदर डर आपको नजर आएगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा और ऐसी सिचुएशन में से, उस डर में से, उस बेचैनी में से निकलने के लिए उसको पाप छोड़ना होगा। तो उसी वजह से आप हमेशा बेचैन रहते थे। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में काम किया, कैसे डिलीवरेंस आपको मिली इस चीज से?
जब मैं ऐसे रहने लगी, पाप में रहने लगी, गलत संगति में रहने लगी, सोशल मीडिया में मैं एक्टिव रहने लगी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पाप में गिर पड़ी थी। परमेश्वर से भी मैं दूर हो गई थी। तो फिर मैं सोचती थी कि मैं ये सब कुछ मैंने छोड़ना है। तो फिर मैंने ये अपने दिल में लेके आया कि मैंने ले हैंड करवाना है। तो फिर मैं जब ले हैंड कार्ड बनवाने आई तो फिर उन ब्रदर को मैं अपनी सारी बात बताई। तो फिर ब्रदर ने मुझे बोला कि आप कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जब आपका ले हैंड होगा तो सब परमेश्वर आपके साथ भला चंगा करेंगे। तो फिर 23 मार्च को 2025 को मेरा मम्मा जी से ले हैंड हुआ। तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक बड़ा हाथ मेरे सर पर आया हो। तो फिर उसी समय मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो उसी समय मैंने परमेश्वर से आज़ादी पाई। परमेश्वर ने मुझे सब पाप से आज़ाद किया। और अभी आप उस पाप से, व्यभिचार से, उस गलत जीवन से पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं। जी ब्रदर, तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आज भी ऐसे लोग, ऐसे भाई बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो यूथ यहाँ पे मौजूद है, अगर आप उस पाप से नहीं निकल पा रहे हैं तो आज इस मीटिंग में जब आप परमेश्वर के दास की तरफ वर्ड को सुनोगे, आप प्रेयर्स को रिसीव करोगे, तो आज उस पाप को छोड़ने का दिन है, आज उस नशों को छोड़ने का दिन है, आज उस व्यभिचार से बाहर आने का दिन है। और जब हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि कुत्ते और सुअर के समान नहीं बनना है। अगर एक बार पाप छोड़ दिया है, एक बार नशा छोड़ दिया है, एक बार व्यभिचार छोड़ दिया, तो वापस उसमें नहीं जाना है, आपको कंट्रोल करना होगा उस चीज के ऊपर। आज हमारा बिलीव है कि आज छुटकारा पाने का दिन है। यीशु मसीह के नाम में तैयार हो जाओ अपनी जिंदगियों में बड़ी डिलीवरेंस को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये गवाही है। सिस्टर दीपाली इनका नाम है और इनकी गवाही के 3 महीने पहले इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज हमारे साथ लाइव है, इन्होंने खुद बताया। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है। मेरा नाम दीपाली भूया है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 3 महीने पहले जब मैं सुबह सो करके उठी तो मेरी लेफ्ट साइड पूरी तरीके से रुक चुकी थी। लेफ्ट साइड कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने MRI करवाया और बताया कि मेरे राइट साइड ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और इस वजह से मेरी लेफ्ट साइड पूरी तरीके से रुक चुकी है। देन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे मेडिसिन और फिजियोथेरेपी करवाया, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। इस तरीके से मैंने 2 डॉक्टर चेंज किए। मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पाती थी। अगर मैं खड़ी भी होने की कोशिश करती थी तो मैं एकदम से जमीन पे गिर जाती थी। मैं टोटली बेड पे जा चुकी थी। मैं पूरी तरीके से अपने फैमिली वालों पर डिपेंडेबल हो चुकी थी। मेरी देवरानी मेरा ध्यान रखती थी, वो मुझे संभालती थी। उन्होंने बताया कि आपको माइनर अटैक हुआ है, अगर आप ज्यादा प्रेशर लोगे तो आपकी जान भी जा सकती है। ये सब सुन करके मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मेरे घर वाले भी मेरी हालत को देख के बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे। फिर मेरी ऐसी हालत को देख करके मेरे फादर ने मुझे एनए मिनिस्ट्री के बारे में बताया और वहां से मैं मेदिनीपुर ब्रांच आती थी। जब मैं फर्स्ट डेली चर्च गई थी तो वहाँ परमेश्वर दास प्रार्थना कर रहे थे और मुझे ऑयल दिया गया और जिस ऑयल को मैंने जैसे अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, मेरी बॉडी में मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ और मेरे पूरी बॉडी जो रुकी हुई थी एकदम से खुल गई। आज मैं पूरी तरीके से डिलीवर्ड हूँ, हील हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से आजाद किया, मुझे हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए आपने इस बहन की गवाही को ध्यान से सुना है तो परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया। तो ये बहन बताते कि जब इन्हें अंकुर और उल्लाम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो ये जब पहले दिन ही चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, प्रेयर को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करना शुरू किया। और फिर 6 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। वो रुकी हुई बॉडी चलने लगी। परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि
हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आज आपका भी फेथ है, आपका भी विश्वास है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ी हीलिंग को देगा, बड़ी डिलीवरेंस को देगा। आप भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। जोर से हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम रेखा रानी, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ और ਪਿੰਡ ਦਾਦੂਵਾਲ और मेरे हस्बैंड है इन्हों का नाम बूटा राम। और आपकी मैरिज कब हुई थी? मेरी मैरिज 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ओके 2006 में मैरिज हुई, उसके बाद आपके पास 4 बेटियां हुई जी और आपके मन की जो इच्छा थी कि आपके पास एक बेटा हो ताकि परिवार कंप्लीट हो जाए। जी 5वीं बार जब बेबी के लिए सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। आप खुल के अपनी लाइफ के बारे में बताएं, उस समय मन में क्या आता था, घर का माहौल कैसा था, आप क्या सोचते थे उसके बारे में? ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਕਦੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੱਟਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਨੀ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬੱਚਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਜਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। तो कितने डॉक्टर्स के पास गए होंगे आप? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ 7 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਰੁਕਦੀ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। डॉक्टर का कहना क्या था कि बच्चा हो क्यों नहीं रहा, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही? क्या ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। तो लास्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया? ਜੈਸ ਬ੍ਰਦਰ क्या बोला उन्होंने? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं भाई बेबी नहीं हो सकता। मतलब सभी तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे। जैस ब्रदर। और जब डॉक्टर ने भी ऐसा बोल दिया कि अब हो ही नहीं सकता है, उस समय आपका मन, आपका कॉन्शियस क्या बोलता था, दिमाग में क्या बातें घूमती रहती थी फिर? ब्रदर मैं इन्ना टुट चुकी सी जदों मैं डॉक्टर की गल सुन के घर आई, मैं अंदरला दरवाजा भेड़ लिया, मैं इन्ना रोई, मैं एक जिद्दां एक पागल है ना कंधा च सिर नहीं मारदे हुंदे, मैं इस तरह मारन लग पई सी। और लोगों ने भी तरह तरह की बातें, ताने देने आपको शुरू कर दिए थे? बहुत ब्रदर, मैं तुहानू दस नहीं सकती लोग किस किस तरह दी बोलियां बोलते सी। और आपके हस्बैंड को भी, जो इनके साथ काम करने वाले लोग, पूछते थे बच्चे के बारे में। आप बताएं ब्रदर, आपको जब पूछते थे लोग कि बेबी नहीं है, बेटा नहीं है, तो मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय फिर? जब बेटा नहीं था उस समय मन में क्या चलता था, क्या सोचते थे आप जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था?
ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं कि परमेश्वर एक दिन जरूर दूंगा। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में से 17 साल पुरानी शर्मिंदगी को खत्म किया, कैसे आजादी मिली आपको? ब्रदर जिद्दां मैं फ्रंट दे विच खड़ी सी कलीसिया दे विच परमेश्वर दे दास कलीसिया दे विच प्रेयर करदे आउंदे सी कि मैं भी फ्रंट दे विच खड़ी सी और परमेश्वर दे दास ने और मेरे ते प्रेयर कीती और मैनू पानी दिता पीण नू और मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करदी आ कि परमेश्वर ने मैनू वो नवी दे नाल मिलाया जो परमेश्वर उन्हां दियां दुआवां प्रार्थना दा और उत्तर दिंदा और मेरी शर्मिंदगी नू और दूर कीता। अज इस चर्च दे विच इस भवन दे विच मेरी ओ शर्मिंदगी नू दूर कीता और मैनू पुत्तर दे नाल ब्लेस कीता, एक बहुत बड़ी टेस्टमनी दे नाल खड़ा कीता। खड़े होके तारीफ करें कलीसिया अपने स्थान के ऊपर। अगर आप खुश हैं तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हौसला हरदे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यीशु नू मन्नण वाले कदी डरदे नहीं हुंदे। हौसला हरदे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यीशु नू मन्नण वाले कदी डरदे नहीं हुंदे। हो सिद्धा रंग उठ जावे कदियां ते फुल्लां तो, हो सिद्धा रंग उठ जावे कदियां ते फुल्लां तो, पर यीशु मिटण देता कदियां से फुल्लां तो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई गवाही? आपकी मैरिज 2006 में हुई थी जैस ब्रदर और बेटा कब हुआ ये? ब्रदर ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਿਤਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਬਰਕਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हर किसी ने कहानियां हो जाई, सारी दुनिया च यीशु यीशु, दुनिया च यीशु यीशु हो गई है, सारी 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 दुनिया च यीशु यीशु। हालेलुया। उस एक बार हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं जिसके द्वारा जब ले हैंड हुआ पागलपन खत्म हुए, रोग खत्म हुए और परमेश्वर ने एक लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के साथ इनको खड़ा किया। उस ले हैंड को भी हम देखते हैं। यस, आप जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। क्या हुआ? आग लगी हुई है। आग लगी यहाँ पे। हाँ, बाहर आओ। पानी दो मेरे को। पानी दो, पानी दो। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर मौजूद है, वो हील करने वाला और डिलीवर करने वाला है। ये पानी में स्वर्गदूत इसको टच करें, ये पिए और सदा के लिए फ्री हो इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। पी लो इसे पूरा। बी हील्ड इन जीसस नेम। तारीफ करें कलीसिया, जितनी ताकत आपके हाथों में है ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे आप मौजूद हैं। 17 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया
उन लोगों के मुंह को बंद किया जो ताने देते थे, जो बुरी बातें बोलते थे। तो आज जितने जन यहाँ पे मौजूद हैं, आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिर उठा के आप जियोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी कमजोरियां, बीमारियां, दुख, बीमारियां, रोग आज खत्म है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोला थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। सब बैठ जाएं अपनी जगह पर। हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है और मेरे हस्बैंड का नाम परवेश मसीह है और मैं गुरदासपुर डेरा बाबा नानक पिंड शिकार माशिया की रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही इस तरह है कि मेरे हस्बैंड 2023 मई महीने ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 102 103 ਬੁਖਾਰ 5 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਬਸ 2-3 ਘੰਟੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ, 4 ਡਾਕਟਰ, ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੌਟਸ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਥੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੀਕੇਜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਸੰਡੇ ਹੀ ਤੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਲੱਡ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੱਬਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਮਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਲਰ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ANM ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हौली 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 फर्क होने बिल्कुल ठीक ने। सब जोर से तालियों के साथ पहले तो परमेश्वर का थैंक्स करें। और हालत सिस्टर बहुत ज्यादा खराब थी। अमृतसर वाले कह रहे थे कि हम इलाज कर देंगे, एडमिट कर लिया, पर गारंटी नहीं है कि ये ठीक होंगे या ये इनकी वॉमिटिंग जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाएगा। नहीं वो नहीं गारंटी लेते थे, वो बोलते थे हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, अगर इनको फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो हमें कोई गारंटी नहीं लेते इनकी। तो जो लंग्स था वो उन्होंने बताया कि टोटली डैमेज हो चुका है। उन्होंने बोला कि वो डैमेज हो चुका है और ये इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि बहुत देखने जब आप देखते थे तो इसको पूरा परिवार ही रोने लग जाता था, क्योंकि वेट जो था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका था इनका। 95 से इनका 50 kg वेट रह चुका था उस समय। और आप तो पहले से प्रभु की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास प्रभु पे था, चाहे डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था तो भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहन ने अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर लाइन के ऊपर
प्रेयर हॉस्पिटल लाइन के ऊपर अपने हस्बैंड की प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया और जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास के द्वारा 23 जुलाई 2023 को इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस प्रार्थना को पहले हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं। सुनो, बहुत से लोग हैं हमारे साथ, अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं आप हील नहीं हो रहे हैं। इस प्रेयर के बाद वो करें जो नहीं कर सकते थे, उठें, चलें, खाएं जो नहीं कर सकते थे। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को इन सब की लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तो आप बताएं, जैसे प्रार्थना हुई, खुदा के दास ने प्रार्थना की, क्या हुआ उस समय? इनके ऊपर जैसे पापा जी ने ले हैंड प्रार्थना किया तो फिर इनको ऐसे लगा जैसे पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है, अभी 2 साल से ये बिल्कुल ठीक है। अभी इनका वेट भी 85 केजी है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। अगर आपने इनके गवाही को ध्यान से सुना है चर्च, डॉक्टर कहते हैं टीबी का रोग हो चुका है, लंग्स बिल्कुल डैमेज हो चुका है और साइन कर दो आप कि आपके हस्बैंड बचे चाहे ना बचे, हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप कहेंगे तो हम इलाज कर देंगे, आप साइन कर दो। डॉक्टरों ने साइन ले लिए, पर इस बहन का विश्वास प्रभु पे था और इन्होंने जब प्रार्थना हुई खुदावंत के दास के द्वारा की वर्ड रिसीव किए, खुदावंत की सामर्थ ने छुआ और एक मुर्दा जाने की खत्म हुए शरीर को, डैमेज लंग को खुदा ने छुआ, फिर से हील किया। वो टीबी का रोग जाता रहा और भाई वो बिल्कुल हील हो चुके हैं। बहन कितने समय से बिल्कुल ठीक है? अब 2 साल से बिल्कुल ठीक है। खाते हैं? हाँ जी खाते कोई हैं। मेडिसिन नहीं लेते हैं? नहीं कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। जो रिपोर्ट थी वो सब नॉर्मल हो चुकी है? नॉर्मल है, ले हैंड के बाद सारी रिपोर्ट उनकी नॉर्मल। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसी बीमारियां, ऐसे लाइलाज रोग हैं जिनका इलाज नहीं है, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वो हॉस्पिटल में, घरों में है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, कोई बात नहीं अगर डॉक्टर आपको जवाब भी देते हैं, अगर डॉक्टर जीजस हमारे साथ हैं तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। बस वो ही हमारे साथ चाहिए, डॉक्टर जीसस हमारे साथ होने चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं भाई, बोलिए। आप प्रार्थना हुई, हाँ जी, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। पहले जब टोटली बेड पर था लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे नेगेटिव हो चुके थे आपके, शायद अब मेरे परिवार बच्चे, क्योंकि आप अकेले कमाने वाले थे। हाँ जी, हाँ जी। और जब प्रार्थना हुई, क्या हुआ आपके साथ? मेरे को पता लगा कि मैं बिल्कुल, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल अभी परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, बॉडी श्रिंक हो रही थी हाँ, और उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। वो टीबी का रोग, वो बीमारी, लंग्स जो डैमेज थे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है सर। सब हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले चर्च। आज जितने जन इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च में है, ब्रांचेस में, ऑनलाइन है, विश्वास करें ये अनॉइंटिंग वो मसा जो खुदावंत के दास और दासी के ऊपर है। आज आप जब विश्वास करेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, खुदा छुएगा, आप हील होंगे। हर बीमारी जो लाइलाज है, हर वो रोग जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो छुएगा आज आपको, आप हील होंगे। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब, धन्यवाद बोलते हुए, सब तारीफ करते हुए। किसे गलती वो रख खबर हर पल दी न कर परिवार किसे गलती वो रख खबर हर पल। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, कर बिक्री होने वाले कल दी। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। रहने वाले कहाँ के आप? मकेरियां के। मई 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। आप बताएं उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ऐसे होता था, मेरे ऊपर इतने दुष्ट आत्मा के अटैक थे, मैं कुछ भी बता नहीं सकती। मेरे को डायरेक्ट सांप नज़र आते थे, इतने हैवी अटैक थे कि मैं अपनी लाइफ पे इतनी परेशान थी, दुखी की, लाचार सी। लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा था, पर मेरा फेथ परमेश्वर पर था। जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो कंसीव नहीं कर पा रहे थे? मैंने
कंसीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा थे, इतने सारे टैक्स, क्योंकि मेरे मिस कैरेज हो जाते थे, 2 मेरे मिस कैरेज हुए थे। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैं परमेश्वर के दास ने मुझे बोला कि आप मेरे कामों के लिए फास्टिंग करो, तो मैंने फास्टिंग की परमेश्वर के दास के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। आपने आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी, आपका वहां से डिवोर्स हो गया था? हाँ जी। उसका कारण क्या था कि बेबी नहीं हो रहा? बेबी नहीं हो रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में टूट चुकी सी, बीमार सी, लाचार सी। उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, बहुत ही ज्यादा मैं अपनी लाइफ में दुखी थी। और जब डिवोर्स हो गया उसके कुछ टाइम के बाद आपकी सेकंड मैरिज हुई? हाँ जी। सेकंड मैरिज हुई, उसमें भी ये अटैक होते रहे? बहुत ज्यादा होते रहे, पर मैं प्रभु की सेवा करती थी और मैं प्रभु के साथ हमेशा चलती थी, कभी भी डोली नहीं थी। जैसे जैसे परमेश्वर के दास मुझे वचन देते थे, आप प्रभु में अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर आपका एक दिन जरूर सुनेगा। सचमुच मेरे खुदा ने मेरी एक दिन जरूर सुनी है। और इतनी अपनी लाइफ में परेशान थी, लोगों ने मुझे इतना सताया, बहुत सारा परेशान किया, पर मैं फिर भी खुदा में अड़ी और खड़ी रही। मैं क्या, खुदा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला प्रभु मैं तुझको नहीं छोड़ सकती। और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना जब शुरू कर दिया, तो 14 अप्रैल 2024 की ये बात है, ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उसमें जब स्पेशल प्रेयर हुई डिलीवरेंस के लिए, तो बाय फेथ अपने लिए इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। जहां भी शैतान तुम्हारी लाइफ में अटैक कर रहा है, यीशु के नाम में घुटने टेक के बाहर चला जाए, आउट हो जाए। जादू टोना, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की अशुद्धता, डिप्रेशन, हर तरह की चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी, हर तरह का रोग घुटने टेके आउट हो जाए इन जीसस नेम। तो आप बताएंगे जिस दिन आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मेरे को फिर खुदा ने एक बेटी गर्ल दे नाल परमेश्वर ने ब्लेस किया। 28 अप्रैल को मैं विश्वास नहीं कर रही थी कि मेरे घर बच्चा जन्म ले सकता है। मैं परमेश्वर के दास को बोल रही थी नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं क्या, मेरे घर बच्चा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने फिर 28 अप्रैल को प्रेगनेंसी चेक की, उधर डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं आप नहीं प्रेग्नेंट। फिर उधर प्रभु के दास को फोन आया कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं बहुत, फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर मैंने फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर मैंने देखा, यकीन किया, सचमुच मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिस महीने इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। और इनके हस्बैंड खुद एक पास्टर हैं, और इनको जब हॉस्पिटल से कॉल आया, जब चेक करवाने के लिए गए थे, पता चला कि आपके वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं। और सचमुच परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को खत्म किया। 4.5 साल की शर्मिंदगी खत्म हुई और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। कलीसिया तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा उसकी प्रस्तुत करते हुए, ओह थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप इतने बड़े कामों को देख रहे हैं, क्या ये नॉर्मल चीजें हैं? क्या आपको ये आम लग रही है कि ये कुछ नहीं है? आप उस परिवार से पूछ के देखो जिनके मैरिज को 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए और बच्चा नहीं। उनकी कंडीशन को अगर हम जाके देखें, उनकी लाइफ को अगर ध्यान से समझें, तो पता चलता है कि वो कितने ज्यादा एक हाई लेवल के स्ट्रेस के बीच में से निकल रहे हैं। कितने हाई लेवल का प्रेशर उनके दिमाग के ऊपर है। लोगों की बातें सुनने को मिलती है, डॉक्टर्स की तरफ से जवाब मिलता है, घर में रोना पीटना है, डाइवोर्स हो रहे हैं। कितनी ज्यादा लाइफ जो है वो नरक की तरफ, एक तरह नरक ही बन चुकी है, खत्म हो चुकी है लाइफ। लेकिन बाइबल में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं? हमें जीवन देने के लिए। अपने पड़ोसी को बताएं, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं।
ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची गवाही देता है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो वो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचोंदा ते आराम भी देता है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो वो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। हौसला हरदे नहीं हुंदे, अखां मरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कर डरदे नहीं हुंदे। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है, तो अपने फेथ को बढ़ाएं। जब आप टेस्टमनी को सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं, तो अपने फेथ को बढ़ाएं। और हमारा बिलीव है कि आज आप आत्मा से भर के वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हालेलुया। मेरा नाम शुभम है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नशे करता था। 7 साल की उम्र से ही मैं बीड़ी सिगरेट का नशा मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया। मैं धीरे धीरे गलत संगति में जाना शुरू हो गया। 7 साल की उम्र में? जी। अभी उम्र कितनी है जी आपकी? ब्रदर, मेरी 28। मतलब आप पिछले 21-22 साल से आप नशा करते थे? जी। तो कौन कौन सा नशा करते थे? धीरे धीरे आगे लाइफ कैसी हो चुकी थी? मैं सिगरेट, धीरे धीरे मैंने सिगरेट से शुरू करा। 1 2 3, फिर बीड़ी, फिर दारू। मेरी संगति मेरे से भी बड़े उम्र वालों के साथ थी। काफ़ी ज़्यादा मेरी फैमिली रोकती थी कि तू उनके साथ मत बैठ, तू मत जा, ये गलत है, तू अभी छोटा है। फिर भी मैं अपने किसी भी फैमिली की बात नहीं सुनता था। मैं जब भी मेरा नशा करने का मन होता था, मैं वहीं पे चला। उनके साथ जाके मैंने बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है, गलत मजाक करने, ठट्टा, सारा कुछ। मेरी लाइफ इतनी बेकार हो गई थी कि मैं ये सोचता था कि ये कभी मेरे जीवन से छूटेंगे ही नहीं। तो इतनी कम उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया है, इतनी आपकी लाइफ खराब हो चुकी थी, तो नशा करने के लिए उस उम्र में पैसा कहाँ से आता था? फिर मेरे पास कोई पैसा नहीं था। जो मेरे दोस्त थे वही मुझे बोलते थे कि ये ले पी ले, कुछ नहीं होता, तेरे घर वाले कौन सा देख रहे हैं, तेरी मम्मी नहीं, तेरे पापा कोई नहीं देख रहा, तेरे ब्रदर भी नहीं देख रहे, तू पी ले, कुछ नहीं होता। तो घर वालों को कब पता चला आपके नशे के बारे में? जब मैं ज़्यादा पीना शुरू हो गया। हाँ। मेरे आसपास के जितने भी मेरे साथ घूमते थे, जो मेरे अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने मेरे घर वालों को जाके बताना है कि शुभम ऐसे काम करता है, वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पीता है, उसकी संगति बड़े बड़े लोगों के साथ हो गई है, उसकी एज से भी बड़े हैं सब, और आप उसे रोकते नहीं हो। एंटी क्यों नहीं रोकते हो आप, उसको बोलो। और उन्होंने आपको नशेड़ी बोलना शुरू कर दिया था? जी, मेरे घर वालों ने मेरे को बोला तू नशेड़ी है, तू कभी नहीं सुधरेगा। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में काम किया, कैसे आज़ादी मिली इन नशों से, पाप भरे जीवन में से? फिर मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में आया। मैं तो सबसे पहले मैंने पापा जी की टेस्टमनी को सुना। पापा जी ने बोला कि मैं नशे करता था, परमेश्वर में आने से पहले मेरे को डिप्रेशन वाला दुष्ट आत्मा था, उससे मैं नशों में जाने लग गया धीरे धीरे। फिर मैं वहाँ पे बीच में बैठा हुआ था, मैंने बोला जब परमेश्वर अपने दास को छुड़ा सकते हैं तो मुझे भी छुड़ा सकते हैं। ये मेरा फेथ था। जब भी मैं आता था मैंने यही बोलना है कि प्रभु आप मुझे छुड़ाओगे, आपने मेरे आत्मिक पिता को छुड़ाया, आप मुझे भी छुड़ाओगे, ये मेरा विश्वास है। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा मेरे समस्या बढ़ती गई। और जब आप चर्च में लगातार आते गए, 15 दिसंबर 2024 की मीटिंग को आप अटेंड कर रहे थे, और स्पेशल नशे से डिलीवरेंस के लिए जब प्रेयर हुई, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, आपके अंदर क्या आपको हलचल नजर आई उस समय? मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा मन हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उल्टियाँ की 2 से 3 बार,
ब्लड वाली उल्टियाँ आई मुझे। तो पापा जी जैसे बोलते हैं कि ये शैतान है, ये निकल रहा है आपकी बॉडी में से, उसी तरह मैंने रिसीव किया कि आज से शैतान जा चुका है, मैं नशे नहीं करूँगा। और मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया कि प्रभु ये जीवन आपका है, आप इसमें आइए, इस्तेमाल करें। प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करा, मुझे आज़ाद करा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का दास का भी, कि परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर इतने बड़े काम जो यहाँ पे कर रहे हैं। परमेश्वर इतना सामर्थी है, अपने दास को भी सामर्थी बनाता है मेरा खुदा। जब मेरा खुदा अपने दास को सामर्थी बनाता है तो हमारे बीच में से रोगों को निकाल देता है। वो जिंदा जीवित परमेश्वर मेरा यीशु मसीह है। और अभी कितने महीने से आप नशों से आजाद है पूरी तरह से? मैं अभी दिसंबर से लेके मई, अभी 5 महीने तक मैंने कोई नशा नहीं। जो लोग मुझे जानते भी थे, अब वो लोग ये बोलते हैं कि तूने कैसे छोड़ी। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं खुदावन यीशु को मानता हूँ जो जीवन देने आया है। वो धर्म जात नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। आप मेरे साथ चलो, आपकी लाइफ के जितने भी नशे हैं वो सब मेरा खुदा अपने दास के द्वारा तुम्हारे बीच में से निकाल देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को याद अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। और आप जानते हैं कि लोग अपनी तरफ से जब कोशिश करते हैं नशा छोड़ने की, पाप छोड़ने की, नहीं निकल पाती, क्योंकि नशा आदत होता तो बंदा छोड़ देता। नशा एक स्पिरिट है, पाप एक स्पिरिट है। जब आप परमेश्वर के अभिषेक के नीचे आओगे, लिखा जहां परमेश्वर का आत्मा मौजूद है वहां पे डिलीवरेंस है, आजादी है। तो जो लोग परमेश्वर के अभिषेक के नीचे आते हैं, अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ता है। तो जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो तो शायद आपसे ना हो पाए, लेकिन जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर का आत्मा अपनी ताकत से आपको छुड़ाता है। आज जितने भी जितने भाई या बहनें भी ऐसी हैं जो नशा करती हैं, यहाँ पे ब्रांचेस में, फॉरेन कहीं से भी आप देख रहे हैं मीटिंग को मौजूद है यहाँ पे, आज आपके नशों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ छूटने के लिए और बड़ी गवाही के साथ बुलबुल के ऊपर खड़े होने के लिए। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमलप्रीत है। कहाँ से हैं आप? अजनाला अमृतसर। 2006 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद आपके पास एक बेटी थी। यस। और उसके बाद आपके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। हाँ जी। क्या होता था, आप खुल के बताएं। ब्रदर 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2010 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰੂਸੇਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ 2020 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 2022 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰਸ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2.5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲਟਕਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਰਾਹ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਾਫ ਐਨ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा हो गया ते बिल्कुल तंदुरुस्त हेल्दी बेबी बुलाए नाल प्रभु ने मैंने ब्लेस किया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये जो बेटा हुआ ये मैरिज के कितने साल बाद हुआ? 17 साल बाद होया। और इसके बीच में 2 बार मिस कैरेज भी हुए। हाँ जी। और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, डॉक्टर बहुत कुछ कहते थे। हाँ जी। पर आपका विश्वास फेथ प्रभु पे था। हाँ जी, बिल्कुल। और परमेश्वर ने आपके विश्वास के अनुसार आपके लाइफ में किया। बहुत सारे लोग जो ताने देते थे, डॉक्टर जो बहुत सारी बातें करते थे, जब नॉर्मल डिलीवरी के साथ खुदा ने 2 मिस कैरेज और 17 साल बाद आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, वो लोग क्या कहते, डॉक्टर क्या कहते? डॉक्टर खुद हैरान सी। वो बार बार यही कहते हैं एंड तक जो मेरी गायनी सी वो कहती है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ, मैं रिस्क नहीं ले सकती। पर प्रभु ने ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੋ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। सब हाथों को उठाते हुए चर्च, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरल्लाह का खुदा आपके साथ खड़ा है। हर कॉम्प्लिकेशन, हर बीमारी जाएगी, आप ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आप विश्वास में वचन में बने हुए तो आज भी जितने जन ऐसे हैं जिनके पास बेबी नहीं है, जब कोई दिक्कत परेशानी, भाई चिंता मत करें। आप जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में हैं, खुदा आपको छुएगा, खुद की आशीषों के साथ, आपकी ब्लेसिंग के साथ आपको खड़ा करेगा। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। यीशु के मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, कर यीशु के मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, यीशु पार लगावेगा। हंजू पूज के तेरे तेनों हंसना सिखावेगा, हंजू पूज के तेरे तेनों हंसना सिखावेगा। अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनकी लाइफ में सेम जैसे हालात आपके थे, कंडीशन आपकी थी वैसे ही हैं, बेबीज नहीं है, बहुत सारी बातें सुनते हैं, डॉक्टर बहुत कुछ कहते हैं रिपोर्ट में। आप क्या कहना चाहते हैं उनको? ब्रदर मैं उन्होंने सारिया भैनों यही कहना चाहवागी
ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵਚਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੂਅਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਮੋਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ परमेश्वर उन चीजों के नाम ऐसे लेता है जो नहीं है कि जैसे वो है, ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਯੋਸੇਫ। ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਯੋਸੇਫ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ पिता ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ਿਆ है। सब हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले, होठों के द्वारा हाथों को उठाते ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोलते हो। ताही यसु नाम दी हर कोई अज गवाही देंदा है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही मोगा चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रदीप कौर की हमारे पास आई है। 31 सालों से ये बहन दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण इन्होंने काफी बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम प्रदीप कौर है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने वास्ते जा रही हूँ। मेरे उत्ते बहुत सारे दुष्ट आत्मा के अटैक होंदे सीगे ते मेरी जिहड़ी लाइफ आ बहुत खराब सीगी ते साडे घर दे विच जादू टूणे दे मतलब अटैक होंदे सीगे, खून दे छिट्टे आउंदे हुंदे सीगे, तवी टुट के आउंदे हुंदे सीगे ते उस तो बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज तो बाद मेरे जिहड़े दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। घर दे विच लड़ाई कलेश रहन लगा ते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुंदी सी। मैं सारा दिन रोंदी रहिंदी सीगी ते कई बार भी मैं मारन की कोशिश भी की, गड्डी थले बैठाने की कोशिश की, मैं सिरपास खाने की कोशिश की, पर मैं अन्य जगहों ते जाती हुंदी सी। घट्टो घट 15 तो 20 जगहों ते गई, मैंने कोई भी फर्क नहीं पियागा। ते उस तो बाद मैं यूट्यूब ते अंकल नरूला मिनिस्ट्री बारे वेख्या तां मैं मोगे ब्रांच दे विच आई। तां एक दिन रब दा दास मतलब खास जद टूणियां दे लई प्रार्थना कर रहे सीगे ते मैं उस प्रार्थना नूं रिसीव कीता ते मेरे मतलब शरीर दे विचों कुछ मैनूं छड्ड के निकलिया ते मैं उस तो बाद आजाद हो गई हां। मैं प्रभु दा बहुत धन्यवाद। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 3 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसी इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो 31 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन से आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो सचमुच परमेश्वर के जीवित वचन फिर आपके जीवनों में पूरे होते हैं। तो हमारा विश्वास है कि जितने भी जन आज परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, आप भी एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाएं और ऊंची आवाज से गए हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मंजीत कौर। रहने वाले कहाँ के आप? कपूरथला। आपको गले का रोग शुरू हुआ था? हाँ जी। आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकलीफ रहती थी इसकी वजह से आपको? ब्रदर मुझे आज से 6-7 महीने पहले ना गले में दर्द रहने लगा। दर्द का मुझे पता ही नहीं लगा भी क्या हो रहा है, लेकिन दर्द था। मैंने नॉर्मल सी बात समझी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द फिर भी इससे ज़्यादा बढ़ता ही गया, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तब मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा भी इन्फेक्शन है। उसने मुझे डॉक्टर ने दवाई दी, लगातार इंजेक्शन भी लगाते रहे, लेकिन इससे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे इससे खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। मैं जब भी सोती थी दिमाग में यही रहता था मेरे गले में आखिर हो क्या गया, क्योंकि डॉक्टरों की तरफ से कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। मैंने 2 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर से जब दर्द इसकी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है,
वो मुझे दर्द की दवाई देते रहे। और आपको आपको गले से खाना भी नीचे नहीं जा पाता नहीं ब्रदर, मैं खा भी नहीं सकती, इस तरह पीने में भी प्रॉब्लम होती थी। बस मैं अगर पीती थी ज्यादातर दूध या लिक्विड ही पीती थी, ज्यादा दर्द होता है। और इसी वजह से वीकनेस बहुत ज्यादा आपको हाँ हो चुकी जी, थी। हाँ जी, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस, क्योंकि मैं खा भी नहीं सकती थी ना। 24 घंटे बस मेरा दिमाग यही रहता था कि मेरे गले में आखिर हो क्या गया है, इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा। मैं डिप्रेस हो चुकी थी, हमेशा अकेली सोचती रहती थी। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे आजादी मिली इस बीमारी से आपको? ब्रदर, मैं इस चर्च से बहुत पहले से जुड़ी, मुझे विश्वास था जब लोग इतने हील हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हील हो सकती। 12 जनवरी को पापा जी ने प्रोफेसी की मेरे लिए कि मैं एक लेडीज को देख रहा हूँ, उसके गले में इन्फेक्शन है। तो आप उस समय कहाँ पे मौजूद थे? मैं हीलिंग हॉल में मौजूद थी ब्रदर। उस प्रोफेसी को 12 जनवरी 2025 को जो परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी थी उसको हम देखते हैं। गले के नीचे एक इन्फेक्शन को मैं देख रहा हूं, औरत के जो खत्म नहीं हो रही, और आप बिल्कुल वरीड हो चुकी हैं, डिप्रेस हो चुकी हैं। खुदावंद का आत्मा आपको छूकर चंगा कर रहा है। और जब आपने प्रोफेसी को सुना, आप यही चर्च में मौजूद थे? हाँ जी ब्रदर। जब सुना तो क्या लगा मन में? मुझे ना वो गले में एक गिल्टी टाइप सा था, गले के अंदर नींबू के आकार सा, वो उसी टाइम गायब हो गया और दर्द भी बिल्कुल गायब हो गया। तब मैं हैरान हुई और मैं आगे आके अपनी गवाही भी दी। और जैसे प्रोफेसी को सुना उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है? हाँ जी, उसी टाइम से मुझे गर्माहट सी महसूस हुई और गले में वो गिल्टी बिल्कुल गायब हो गई। और मैं हैरान हो गई भी परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इस बीमारी को किस तरह जाहिर कर दिया। जो प्रॉब्लम थी वो सेम एग्जैक्टली आप कभी उनसे मिले नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं मिली उनसे। अपनी इस प्रॉब्लम को कभी फेसबुक नहीं ब्रदर, मैंने ये प्रॉब्लम अपने हस्बैंड और बेटे को भी अच्छी तरह बताई थी कि मुझको कितनी तकलीफ थी, क्योंकि मैं सारी रात जागती रहती थी, सोती थी, हमेशा दिमाग में यही रहता था भी क्यों, क्या हो गया है, कि प्रॉब्लम कब ठीक होएगी। और उस प्रोफेसी को जैसे इस बहन ने सुना, ये तुरंत फटाफट भाग के पुलपट के ऊपर आए। उस दिन की इनकी जब हीलिंग हुई थी उस वीडियो को भी हम देखते हैं। परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी और ये बहन जो है वो आगे आए हैं। परमेश्वर के दास ने बोला कि एक बड़ी हीलिंग को मैं देख रहा हूँ, गले के नीचे इन्फेक्शन को मैं देख रहा हूँ। आप औरत हैं और वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही है और आप बहुत वरीड हैं, डिप्रेस्ड हो चुकी है। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है और चंगा कर रहा है। और ये बहन जो हमारे सामने आई, सिस्टर आप बताएं आपको कितने महीनों से, कितने समय से ये प्रॉब्लम थी? ये मुझे 6-7 महीनों से लगातार प्रॉब्लम थी। मुझे बहुत ज्यादा निगलने में भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी खाती थी तो मैं गले में अटक जाता था, इतना ज्यादा पेन था ना, बस मैं बता नहीं सकती किसी को, मगर मैंने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन मैं परमेश्वर से आगे प्रार्थना करी, परमेश्वर आज तेरे दास के द्वारा तू मुझे हील करेगा। आज वही बात मुझे परमेश्वर के दास ने हीलिंग करी, मुझको हीलिंग महसूस हुआ और मुझे गले में हलक सा महसूस हुआ और मैं बिल्कुल ही यीशु के नाम से और आपका गला जो है वो बिल्कुल खुल चुका है, बिल्कुल हील है। हाँ जी, बिल्कुल खुल चुका है यीशु के नाम। तारीफ करें इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए जोर से सब जन। और उस दिन के बाद से अभी कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? मुझे 5 महीने हो गए, मैं बिल्कुल हील हूँ। परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल हील कर दिया। मुझे खाने में प्रॉब्लम है, ना पीने में, ना में बोलने में कोई तकलीफ होती है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जय मसीह की। मेरा नाम रवि है, शहर मेरा कपूरथला है, कपूरथले के पास मेरा गांव है। पिछले 8 साल से आपका जीवन पाप में था जी। कैसी लाइफ थी आपकी, बताएं उसके बारे में। बहुत बेकार लाइफ थी। क्या था ऐसा लाइफ में आपके जो बेकार लगता था? बहुत नशे करने, जो भी मिलना, गलत संगति के साथ रहना, तो ऐसा लगता था समटाइम जब घर में भी कोई प्रॉब्लम होती थी, बाहर रहता था तो समटाइम घर में भी कोई प्रॉब्लम होती, जब घर से कॉल जाता था कि घर में ये प्रॉब्लम, और दिमाग खराब होता और पी लेने, जो मिल गया खा लेना है। ये जो दोस्त हैं, सब सारे दोस्त हैं जितने भी थे, सब अच्छे नहीं थे। कोई दारू पीने वाला है, कोई ड्रग्स वाली सिगरेट पीने वाला है, ऐसे ही सारे दोस्त थे, कोई भी अच्छा दोस्त नहीं। तो आप कौन कौन सा नशा करते थे? जो दारू से शुरू हुआ, कूल लिप से शुरू हुआ, जर्दा लगाता था, और वो फ्लेवर वाली सिगरेट पीता था। तो दोस्त रहते थे, कभी कभी उनके साथ उन्होंने आवाज दे देनी है, आ जाओ, ड्रग्स वाली सिगरेट है, ड्रग्स सिगरेट में डाल के पीते, पी जाओ, 2 आवर के लिए हैं, सीधा है। तो नशा आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा। 2022 में आप आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री गए कहीं पे जी। तो वहां पे आपका जीवन कैसा था?
वहाँ नशा ही चल रहा था। फिर आपकी ब्रांच का पता चला, जिधर अकोमोडेशन में मैं रहता था, वो इंडिया से नया एक लड़का आया था। उसने बताया कि ब्रदर इधर खामरा वालों का ब्रांच है, आप उधर जाओ। मैं बोला मेरे तो पता नहीं है, दुबई में जो ब्रांच है। जी जी जी। तो फिर मैं उससे जुड़ा, तो धीरे धीरे जब दारू जाती होती गई, नशा जाता होता गया, तो उसके बाद क्या, इधर ज़्यादा पेन होती थी, इधर पेट के अंदर गिल्टियाँ हो गई थी। अच्छा। तो फिर मेरे जाने के बाद खुदा ने मेरे को बेटी दी, तो बेटी से ब्लेस किया। तो सम टाइम होता था यार मेरी बेटी है, जितनी मेरी तकलीफ होती है मैं मर जाऊंगा। रोता कभी कभी 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करके, कभी 3-3 घंटे बस सोना, बाकी दारू पी के रोते रहना है कि यार मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही मेरी जिंदगी में खत्म हो जाऊंगा। फिर बोला यार मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कौन से काम करता हूँ। फिर ब्रांच से जुड़ा, ब्रांच में जाने लगा। धीरे 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 करके सब सही हो गया। पिछले ईयर को 5वें मंथ को 19 तारीख को लास्ट ड्रिंक किया था। अभी ये 5 मंथ में 19 तारीख को पूरा ईयर हो जाएगा। कोई नशा नहीं किया उसके बाद? नहीं किया। 1 साल लगभग हो चुका है आपको? हाँ जी, 5वें मंथ को हो जाएगा। और नशा पूरी तरह से आपकी लाइफ से जा चुका है? जी जी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। अभी फिर जीवन कैसा है? अभी जीवन अभी मजा आ रहा है, शुक्र है खुदा का। इधर आने के लिए तरसता था, हालेलुया, मेरा खुदा इधर लेके आया, आज मेरे को ले गया। मैं दुबई में था, लाइफ चेंज हुई, तो मैं सोचता था कि यार मैं खामरा ये जगह कब आऊंगा, आज मेरे को पता भी नहीं। मैं इधर आया, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। इधर आने की मेरी औकात नहीं है, पर फिर भी उधर बैठा था, आज खुदा उठा के लेके आया। कल खुदा ने माइंड में डाला, कल तेरे को तू खामरे जा, तेरे को आवाज पड़ेगी, तू जाएगा पुलपुल के पास, तू जाएगा। आज खड़ा हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। जो खुदा, मैं गंदा आदमी था, बहुत गंदा था। हाफ दारू से लेके हाफ, फिर पौनी, फिर पूरी बोतल, ऐसे बढ़ता गया नशा, बढ़ता गया। वो बैड दोस्तों जो गाली वाली, झगड़ा वगड़ा, वो कभी होता था कि इधर थोड़ा पुलिस टिके, थोड़ा पुलिस हाट है, अगर झगड़ा हो गया तो 1 मिनट में पकड़ के ले जाएगी। दारू पी के डिलीवरी का काम करता था, दारू पी के कैदी का खाना देता था डिलीवरी में, तो दारू पी के सीधा जेल में चला जाता था। अगर पुलिस वाले को थोड़ी सी भी स्मेल आ जाती तो सीधा अंदर। तो अभी आप 1 साल से नशे से आजाद है पूरी? जी जी जी। ओह थैंक यू जीसस। बोले इक्लेसिया ऊंची आवाज में। ये भाई, इनके गवाही का अगर आपने ध्यान से सुना, ये बता रहे मैं मसीह में था, लेकिन वचन की एक्यूरेट नॉलेज नहीं थी, वचन की समझ नहीं थी जी। मसीह में होने के बावजूद भी नशा था जी। जब से आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वर्ड को सुन रहे हैं, तो समझ आना शुरू हुआ है जी। तो आज ये नशे से आजाद हैं। अगर आप भी परमेश्वर की प्रेजेंस में अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे, आज छुटकारा अपनी जिंदगियों में लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिलीवरेंस, चंगाई को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोला थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। मदर फादर को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। मैं उड़ीसा से हूँ। 15 साल पहले क्या हुआ था आपके घर में जब जादू टोना हुआ? उसके बाद 15 साल पहले 2009 को मेरे फैमिली के साथ एक पर्सन की, मतलब एक पड़ोसी की लड़ाई झगड़ा हुई। लड़ाई झगड़ा होने के बाद 2010 में मेरे दादाजी, मतलब उनका तबीयत खराब हुआ। उनका तबीयत खराब होने के बाद मतलब रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते थे। फिर ऐसा हुआ, वो अचानक से जब घर बनाना हम शुरू किए तो हम घर पर, मतलब घर रिमॉडलिंग कर रहे थे, तो घर रिमॉडलिंग कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि मेरे 2.5 महीने बाद मेरे दादाजी डेथ कर गए। फिर उसके दूसरे साल वही बीमारी चलता रहा, अशांति होती थी मेरे घराने में, बहुत लड़ाई झगड़े, किसी के साथ किसी की नहीं बनती थी, और पैसे मतलब पता नहीं चलते थे कहाँ पैसे, मतलब बीमारी में मतलब चले जाते थे घर में। इस जादू टोने की वजह से कितनी मौतें हुई आपके परिवार में? मेरी घर में 4 मौतें हुई। किन किन की?
मेरे दादाजी की, मेरी दादी माँ की, मेरी दादी माँ की छोटी बहन की, देन मेरे मदर जी की भी डेथ हो और गई। सबको कोई ना कोई बीमारी होती थी, लिवर हाँ जी। डैमेज, कैंसर, ऐसी बीमारियां होती थी हाँ जी, हाँ जी, और किसी ना किसी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। हाँ जी, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी। जब 2021 को मेरे मदर की डेथ हो गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। 1 ईयर तक मैं उस टाइम 12th कर रही थी, 12 साइंस में कर रही थी। और आपको ये ऐसी आवाजें आती थी कि अब मैं तुझे मार दूंगा, अब ये तेरी बारी है। हाँ जी। और आप इमेजिन करें कि 4 इनके मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी, इसके बाद दुष्ट आत्मा इनसे बात करता था और ये डिप्रेशन में थे। और आप जब यहाँ पे आए तो परमेश्वर के दासी ने ले हैंड प्रेयर करी, डिलीवरेंस हुई और आज 2 साल से आप पूरी तरह से आजाद हैं। आपका परिवार फ्री हो चुका है। हाँ जी। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे समझे।